Welcome back, friends. Today I'm going to start with Standard 7, chapter number 5, that is the winds. Stay focused, watch till the end. If any doubts, please let the team know with your comments. Okay, so starting with, I hope you can see the screen. Chapter 5 winds. Achha, for before starting with, you have to read this chapter along with the chapter number 4, which we have just finished. Okay, so please watch that before starting chapter number 5. It is interrelated and you will be getting to know a lot about it. So what are winds? So winds, उसके पहले मैंने बोला था कि आपको एयर प्रेशर अच्छे से पढ़ना है, तो that is chapter number 4. Really thoroughly. Geographical explanation. उसके पहले there are some questions. The questions are like see outside the window of your classroom, which objects are moving, which are still. So you can definitely now classroom is not working, so you can definitely see outside the window of your house, okay, and see which objects are moving and which are still. Okay. Now which objects are moving on their own and which are not moving on their own. You have to realize all that stuff. So the reason behind all this movement in the environment, in the surrounding, is nothing but the wind. Okay, अब बोल सकते हैं हवा है, but हवा exactly क्या है? हवा जब movement करती है ऐसा, ठीक है? That when air moves like this, it is wind. The movement of air is nothing but the wind. So, yeah, movement of air hota kya hai? So we have learned that the air pressure is not uniform across the Earth's surface. That is chapter number 4. Please recollect. There are two types of air pressure: high pressure belt and the low pressure belt. Air हमेशा कहाँ से जाएगी? From the high pressure to the low pressure. Hey, come on. From the high pressure to the low pressure. Air का movement हमेशा ऐसा ही होगा. So air always moves from the high pressure to the low pressure. And when the air moves, it is known as what? The air moves towards the area of low pressure. Okay, so this is one experiment. You have to roll this down to the other side of the table, roll this paper to the other side of the table with the help of the wind itself. Okay, this is generating wind and you itself is also excelling the wind. So these are the experiments you can try at home, not an issue in that. Second, this is what? This is the earth. Earth is having different degree angles. 0 degree, of course, that is what? Equator. Equator and 30 degree north, 30 degree south, that comes across what? Tropic of Cancer, and just below the Tropic of Capricorn. And this is the polar belts, and the highest is the North Pole and the South Pole. So this is nothing but the direction. I'll come to this exactly है क्या ये figure 5.2, but आपको समझ में आ जाएगा. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Air हमेशा move करती है from the high pressure area towards the low pressure area. Okay, winds are generated due to this movement. See, when the air moves from the high pressure to the low pressure, winds are generated due to this movement. The extent of difference in the air pressure affects the velocity of the wind. See, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रहा है तब तो मोमेंट ऑफ एयर हुआ और दैट इज विंड, बट विंड का वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा? द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर. मतलब हाई प्रेशर वो कितना है ये, या फिर लो प्रेशर कितना लो है. तो डिफरेंस बिटवीन द हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी से विंड फ्लो करेगी. अगर डिफरेंस कम है तो वेलोसिटी भी कम है, डेफिनेटली जगह कम रहेगी तो कम स्पीड में होगा. सो the extent of difference in the air pressure affects the what? Velocity of the wind. It's very clear. Higher the difference, greater the speed. Lower the difference, lower the speed. That is very clear. Okay, sure. Wind speed also varies. Wind velocity is measured in the knots or the kilometer per hour. ठीक है? Wind speed को generally knots में measure करते हैं, otherwise kilometer per hour में भी आप measure कर सकते हैं. Okay. When we consider the earth as a whole, ठीक है, earth as a whole की बात हो रही है, not just one country, we find the direction of the wind is influenced by the rotation of the earth. Earth rotates from west to east. Okay, correct me if I'm wrong, but Earth rotates from west to east. In the northern hemisphere, winds get deflected towards the right of their original direction, whereas in the southern hemisphere, they get deflected towards the left of the original direction. अभी मैं क्या पढ़ा? I'm referring to this. I'm referring to this. This red one represents the original direction of air from definitely high pressure to the low pressure, and this light blue arrow change direction because of the rotation. Okay, see, ये high pressure है ये वाला, and this is low pressure. Air हमेशा कहाँ से move होगी? From the high pressure to the low pressure. See, the moment of arrow is towards the low pressure. Okay, यहाँ पे भी check करो, ये high pressure है, ये low pressure है. See, the moment of arrow is towards the
low pressure. So always moment of the arrow will be towards the what? Low pressure. So this is the original direction. Okay. If Earth will not rotate, if Earth will not rotate, then the direction would have been this. But since the Earth is rotating itself on its own axis, the direction gets deflected towards the west. समझ रहे हो? ये वेस्ट हो गया. यहाँ से जब वो आ रही है तो ये इसका वेस्ट हो गया. ये यहाँ से जब जा रहा है तो ये ईस्ट हो गया. यहाँ से जब आ रहा है तो ये इसका ईस्ट हो गया. So depending on the direction when they are moving is just because of the rotation of the earth. And air हमेशा high pressure से low pressure की तरफ जाएगी. So ये चीज था I wanted to share. So there are different types of winds. ऐसे तो ठीक है, अर्थ ऐसा गोल में winds है तो बहुत सारी wind flow हो रही है, तो there are different types of. और ये हमने ऑलरेडी बेल्ट हमने इसे पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 4 में, अलग अलग टाइप के प्रेशर बेल्ट. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है. मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट जो 35 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होता है. Then subpolar this 55 to 65 and the polar it's 90 degree. Again here same in the southern hemisphere, mid latitude 25-35, subpolar 55-65 and the polar area which is of 90 degree. So in the different areas of the earth there is different kind of pressure belts. Due to the pressure belts air moves, and when the air moves it is termed as wind. Okay, so इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, तो क्या होगा? डेफिनेटली एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आएगी. चलो ये एयर निकली यहाँ से हाई प्रेशर से आके कहाँ पे आ गई? लो प्रेशर. बट सिंस दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ द डायरेक्शन. सी ये वाला जो डायरेक्ट यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये जो है दिस इज ईस्ट. सिंस दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ईस्ट hence it is known as easterlies. Okay, so again ये वाला भी नीचे भी ऐसे ही सेम हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर पे गए, बट सिंस दे आर ओरिजिनेटिंग इन द ईस्ट, सिंस दे आर नोन एज व्हाट? ईस्टर्लीज. बट यहाँ पे कैसे? यहाँ पे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रहा है, बट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्ट एंड गोइंग इन द ईस्ट. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्ट एंड हेंस दे आर नोन एज वेस्टर्लीज. ओके, सो कम ऑन गेट इट वेरी क्लियर. सब कुछ निकाल दो दिमाग से, सिर्फ इतना सोचो. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, दैट्स पॉइंट वेरी क्लियर. जब ईस्ट से जाएगी तो वो ईस्टर्लीज होगी, और जब वेस्ट से जाएगी तो वेस्टर्लीज होगी. ठीक है, ईस्ट से जाएगी तो वो अल्टीमेटली वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगी. यस, दिस इज ईस्टर्लीज. ओके, एंड दिस इज वेस्टर्लीज. वेस्ट से निकली ये वाला और गई ईस्ट की तरफ, तो ओरिजिन के नाम पर उसका नाम रखा गया है. ओके, so westerlies originate from the west, easterlies originate from the east. I hope it is very clear. तो ये पूरे प्लैनेट पे है. सी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. इट्स ऑन दी होल प्लैनेट. पोलर विंड्स एकदम साउथ एकदम नॉर्थ है, सब पोलर बेल्ट्स है. तो उसके बाद लैटिट्यूडनल बेल्ट्स है, उसके बाद इक्वेटोरियल बेल्ट है, वहां पे भी फ्लो हो रही है. सो इसलिए पूरे प्लैनेट में जब ये फ्लो हो रही है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया प्लैनेटरी विंड्स. ठीक है, तो प्लैनेटरी विंड्स आर द विंड्स व्हिच फ्लोज ऑन द होल ऑफ द प्लैनेट, होल ऑफ द अर्थ. बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड्स. तो वो टाइप्स कौन सी है? एक तो हम लोग ने पढ़ा ईस्टर्लीज, दूसरा हम लोग ने पढ़ा वेस्टर्लीज, और तीसरा है पोलर विंड्स. कम ऑन, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स. ठीक है, अमूल का याद है. चलो, planetary winds, earth is a planet. When the wind blows in the whole planet, it is known as what? Planetary winds. But planetary winds are of three types: easterlies, westerlies, polar winds. Okay, easterlies, westerlies, polar winds. Sure. Winds are known by the direction from which they flow. Come on, मैंने बताया अगर वेस्ट से होगी तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से होगी तो ईस्टर्लीज. पोलर से आ रही है इसलिए वो पोलर विंड्स है. डायरेक्शन इज very important. Okay, since they are coming from the polar, they are known as polar winds. Since they are coming from the west, they are known as westerlies. Since they are coming from the east, they are known as what? Easterlies. Okay, so planetary winds मैंने बता दिया. Example are easterlies, westerlies and polar winds. ठीक है, अच्छा ये both the hemisphere है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ में है. यहाँ पे पोलर विंड्स है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है. तो नॉर्दर्न में भी ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स. वैसे ही सेम सदर्न में भी आपको मिल जाएगा ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड दी पोलर विंड्स. ओके, चलो, इन बोथ द हेमिस्फीयर इट इज देयर. और वो फिर एरिया के बीच में पढ़ लेना आपके 25 डिग्री के 35 डिग्री में कौन सा वाला आ रहा है. तो अच्छा, अभी डायरेक्शन, व्हाई दे आर चेंजिंग द डायरेक्शन? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. आई टोल्ड यू, अगर रोटेशन नहीं होता वो स्ट्रेट जाता. डेफिनेटली अगर रोटेशन आ रहा है तो उसको एक वो बोलते पुश मिलता है हवा की वजह से. देन
get deflected from the original direction. I hope you are understanding by my action. Okay, chalo. And then what happens? In both the hemisphere wind blow तो ये mid latitudinal का बताया, फिर बाद में then polar high pressure belt का बताया, आगे equatorial belt का बताया. So different belt पे different winds are generating are called polar winds. Polar high pressure पे mid latitudinal पे क्या है, westerlies हो रही है. So you have to remember this. Okay, ये इतना जो text था, even if you remember this whole diagram Earth का, ठीक है, if you can draw this at your home, कहाँ से easterlies कहाँ से westerlies आती, कौन सा belt है यहाँ पे proper, if you can draw this at your home without seeing this text, definitely then it will be very beneficial. Okay. Then do you know पढ़ लेते थोड़ा. Winds in the southern hemisphere blow with great velocities. देखो high pressure से low pressure, but ज़्यादा अगर difference रहेगा temperature में, ज़्यादा अगर difference रहेगा air pressure में, तो ज़्यादा ही velocity होगी. अच्छा, कम difference है air pressure में, तो definitely कम velocity होगी. But यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ कि जो हमारा अर्थ का southern hemisphere as a whole, ठीक है, not just the whole earth, I'm just talking about the southern hemisphere of the earth. Okay, so what happens in southern hemisphere as relatively comparatively of the northern hemisphere. southern hemisphere में relative मतलब northern hemisphere के comparison में क्या होता है, winds जो है वहाँ पे greater velocity के साथ flow. The reason being मैं आपको बता रहा हूँ. आप अगर नॉर्थ साइड में देखेंगे अपने अर्थ के इक्वेटर के अबव साइड में अगर आप देखते हैं, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि वहाँ पे लैंड मास जो है बहुत ज्यादा. देयर आर सो मेनी माउंटेन्स, देयर आर लैंड मास, देयर आर प्लेटोज, देयर आर प्लेन्स. So there is some obstruction for the wind to flow. Okay, but if you see in the south is completely, not completely, but 90% of the south is covered with the ocean. There is Pacific Ocean, it's huge, humongous mass. Then there is Atlantic Ocean, there is the southern Atlantic Ocean. Then there is Indian Ocean, completely lies in the southern hemisphere. Then there is Antarctica. So in southern there is not much restriction. The land surface is almost absent. 90% is of ocean, seas and water bodies, and that is the reason the wind does not have any obstruction and they flow with the higher velocity. Okay, ये reason आपको पता चल गया. North में क्या होगा, there is land surface, there is plateaus, there is trees, there is mountains, and hence there is obstruction for the wind to flow. चलो, तो क्या होता है, अभी 40 डिग्री के आगे जब विंड ब्लो होती है तो वहां पे ट्रेमेंडस वेलोसिटीज होती है एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज रोरिंग 40s. ये सब याद रखना. 50 डिग्रीज में होती है फ्यूरियस 50s, क्योंकि वहां पे एकदम स्टॉर्मी हो जाती है, डरावनी एकदम. फ्यूरियस मतलब डरावना होता है. ओके, स्टॉर्मी विंड्स अराउंड 60 डिग्री. तो वो जब 50 डिग्री के बाद स्टॉर्मी विंड्स होगी, तो स्टॉर्मी डिग्री 60 डिग्री के पास ट्रेमेंडस नॉइज भी करती है, आवाज, एंड हेंस दे आर नोन एज स्क्रीचिंग 60s. सो कम ऑन, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री. 40 डिग्री पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो रोर करते हैं, आवाज करते हुए चलती है, इसलिए वो रोरिंग 40s, रोर करते हैं, चिल्लाओ, रोरिंग. 50 डिग्री पे विंड स्टॉर्मी हो जाती है, इसलिए वो फ्यूरियस, डर लगने लग जाता है, तो फ्यूरियस 50s. और फ्यूरियस 50s के आगे जो स्टॉर्मी विंड 60 डिग्री पे जब जाती है, 60 डिग्री साउथ पे है, साउथ की बात करो डेफिनेटली, एस स्टैंड्स फॉर साउथ, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया था. जब 60 डिग्री साउथ में जाती है वो स्टॉर्मी विंड्स, तो उसके साथ ट्रेमेंडस नॉइज भी आता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीचिंग 60s. So roaring 40s, furious 50s, screeching 60s. Come on, roaring 40s, furious 50s, screeching 60s. Okay. और ये 40 डिग्री 50 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स में क्यों नहीं है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, बहुत सारा लैंड मास है, प्लेटोज है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है. देयर इज obstruction, there is not much of the water body है नॉर्थ में भी ऐसा, बट आर्टिक ओशन है, थोड़ा सा अटलांटिक है, थोड़ा सा पैसिफिक है, बट साउथ जितना नहीं है कंपैरेटिवली. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. Planetary winds is chapter में very important is easterlies, westerlies और polar winds. You have to remember this. Easterlies blowing from the east, westerlies blowing from the west, polar winds blowing from the polars. ठीक है, polars 1 and 2 polars जो है ना अपने north pole south. Local winds, the wind that blow for a short duration of time. Local winds जो short period of time के लिए होगी, जो सिर्फ specific regions में ही होती है. ठीक है, ये characteristics है local winds के. Local winds जो short duration of time के लिए होती है, जो स्पेसिफिक रीजन के लिए होती है, और आगे सिर्फ लिमिटेड एरिया के लिए जो फ्लो होती है, मूवमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ लोकल विंड्स. लोकल विंड्स स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम और ओवर लिमिटेड एरिया, ब्लो ओवर लिमिटेड. ओके, सो लोकल विंड्स करते क्या, सो लोकल विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेदर. आपके घर के आसपास जो हवा है वो लोकल विंड्स. ओके, और प्लैनेटरी विंड्स तो वो पूरे प्लैनेट पे है ना, बट
एग्जैक्टली आपके कंट्री, आपके सिटी, आपके लोकेशन के पास कौन सी हवा है, दोस हवा आर नोन एज व्हाट, लोकल विंड्स। दिस winds are known by different local names in different region। हम लोग नेम आगे पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। So there is figure A which is going about valley breeze, and then there is figure B which is you have to draw mountain breeze। कैसे आप ड्रॉ करोगे? Definitely you need to take the help of internet in this। valley breeze और mountain breeze आपको अच्छे से देखना है, और वैली ब्रिज में आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन ब्रिज आपको दे दिया है, तो आपको ये होमवर्क है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर। ओके, ये पढ़ा देता हूँ। 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, वो हमेशा काम रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर में। विंड्स वहाँ पे इतनी ब्लो नहीं होती, विंड्स है इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट में, विंड्स है इतनी, बट वो आके मिल जाती है, वहाँ पे इतना कोई ब्लो नहीं हो रहा। ओके, इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल क्लाम जोन एंड doldrums, doldrums पे, but in the area of tropic of Cancer or the tropic of Capricorn that is between 25 degree या फिर 35 degree north and south, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये भी काम बेल्ट ही है, और इसको मैं बोलता हूँ हॉर्स लैटिट्यूड। तो आपको ये डेफिनेटली ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये वाले पे इसको डोल्ड्रम्स से बोलते हैं। यहाँ पे हवा फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ पे काम जोन, हवा यहाँ पे फ्लो हो रही है, हवा यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे तो आके सब हवा मिल रही है। सेम अगेन मिड लैटिट्यूडनल या फिर ये भी मिड लैटिट्यूडनल 25-35, ये भी क्या है, हवा ब्लो नहीं हो रही है, जस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द winds। ओके, सो रिमेंबर दिस। और वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन ब्रीज पढ़ लेते हैं हम लोग। माउंटेन ब्रीज कूल डाउन क्विकली एट नाइट, वैली जोन इज कंपैरेटिवली वार्म। अब देखो माउंटेन जोन और वैली जोन, अब ये दो माउंटेन हो गए सपोज, और उसके बीच में छोटा सा जॉर्ज बना हुआ है, जस्ट लाइक खाई। तो ये जो होती है उसको मैं बोलता हूँ वैली, हिंदी में इसको खाई कहा। तो वैली जोन रात के वक्त कंपैरेटिवली क्या होता है, वार्म होता है। एयर प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द माउंटेन्स। अब एयर प्रेशर माउंटेन पे ग्रेटर क्यों? क्योंकि माउंटेन कूल्स डाउन है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में 4th चैप्टर में पढ़ा दिया था। टेम्परेचर अगर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एयर प्रेशर क्या है, कम। दोनों अपोजिट लाइन में चलते हैं। winds blow from the mountain towards the valley, winds from the mountain towards the valley। अब देखो एयर प्रेशर कहाँ है, ग्रेटर ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन्स पे हाई प्रेशर है, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी, तो फ्रॉम द माउंटेन टुवर्ड्स द वैली जाएगी। आई गेस इट मेक्स सेंस राइट। माउंटेन ठंडा है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर सॉरी ठंडा है तो टेम्परेचर कम है, बट प्रेशर ज्यादा है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। So from the mountain towards the valley, wind moves. The hot and the light air from the valley is pushed forward, and the cool air rushes down in the valley, and this circle goes। ठीक है, जो हॉट एंड लाइट एयर वैली में है वो ऊपर आ जाएगी, फिर वो कूल डाउन होगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर ये वापस ऊपर जाएगी। ऐसा सर्कल इट गोज ऑन मूविंग, एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व विंड 24/7 365 days। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो प्लेनेट पे हवा नहीं, ठीक है, हवा इज वेरी वेरी नेसेसरी। और माउंटेन विंड्स सेट्स इन आफ्टर सनसेट, ये मैंने बता दिया। डोल्ड्रम्स इन हॉर्स लैटिट्यूड से आपको। अब एक और चीज है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज का भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। क्या होता है, एयर ऑन लैंड गेट हीटेड। सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट है, सी और लैंड दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। एयर का टेम्परेचर हीट अप भी बहुत जल्दी होता है, बट कूल डाउन भी बहुत जल्दी। बट सी का जो टेम्परेचर है वो हीट भी जल्दी नहीं होगा और कूल डाउन भी जल्दी नहीं होगा। देखो क्या होता है, आप कोई भी टेरेस पे जाना, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग के टेरेस पे जाना, वहाँ देखना दिन में बहुत गर्मी, आप बिना शूज पहने तो आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि वो गर्म होता है पूरा सरफेस। बट वही आप टेरेस पे एकदम रात में जाओ तो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा अरे बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। बट जो वाटर है वहाँ पे आप दिन में जाएंगे, वो वाटर को टच करेंगे तो भी ऐसा लगेगा ठीक ठाक ही है, इतना कोई ज्यादा भी गर्म नहीं हो एज कम्पेरेटिव लैंड। और रात को भी जाएंगे ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर आपको मिलेगा, क्योंकि वो अभी हीट को ट्रैप करके रखता है। तो देखो क्या होता है, लैंड जो है वो ओपैक नहीं है, ओपैक का मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो चीज ट्रांसपेरेंट होगी वहां पे क्या हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। वाटर में वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो बन जाते हैं, वो हीट अपना मॉइस्चर अपना होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इस वजह से
पानी ना ही जल्दी गर्म होता है ना ही ज्यादा क्या ठंडा होता है। तो ये एक रीजन था, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी अच्छे से, आज तो मैंने खाली ऊपर ऊपर समझाया। दिस लैंड इज मेड अप ऑफ डेंस मैटर, डेफिनेटली लैंड जो है वो डेंस मैटर से बनी है, एकदम टफ है लैंड, पानी जैसा नहीं कि हाथ डालो अंदर चले जाए, जमीन में ऐसा हाथ डालो नहीं है, यू हैव टू डग दैट। ओके, जब तक उसको डग नहीं करोगे यू कैन नॉट पुट योर हैंड इनसाइड द लैंड। द लैंड इज मेड अप ऑफ डेंस मैटर, लैंड इज स्टेबल एंड ओपेक। ठीक है, डेंस मैटर भी है वहां पे, स्टेबल है लैंड, हिलती हिलती नहीं है, जैसे पानी ऐसे हिलता है ना अभी उसमें, लैंड हिलती नहीं है। ओपेक है मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। As a result, heat is transferred at a greater speed and in higher proportion. Heat बहुत जल्दी स्पीड से ट्रांसफर होती है, हायर प्रोपोर्शन में ट्रांसफर, ज्यादा गर्मी हो जाएगा। ठीक है, hence that get heated quickly। वही सेम रीजन की वजह से वो कूल डाउन भी क्विकली होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली लेस, डेंसिटी का वाटर डेफिनेटली लेस है। वाटर इज ट्रांसपेरेंट और क्या है, अनस्टेबल, वाटर ऐसा होता रहता है अनस्टेबल है, hence वाटर जल्दी हीट नहीं होता है। As a result, the air pressure in land water area is different। अब देखो, एक जल्दी गर्म हो जाता है, एक जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो जो जल्दी गर्म हो जाएगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट एक जल्दी गर्म हो ही नहीं रहा तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, टेम्परेचर ज्यादा तो लो प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर कम तो क्या होगा, हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। Okay, in the coastal areas, land gets heated during daytime. Hence, the air on the land also gets heated, and the air pressure on the land decreases। समझ रहे हो, कोस्टल एरियाज की बात चल रही है, मुंबई, वहाँ पे क्या होती है, लैंड जो है जल्दी हीट हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम, जो क्या होती है उसके ऊपर का जो एयर है वो भी हीट हो जाएगा। अब एक जमीन है वो गर्म हो गई तो उसके ऊपर का एयर है वो भी गर्म हो जाएगा ना, सीधी बात है ना। खाने पे गैस पे खाना रखा बनाने, तो क्या होगा, जो कढ़ाई पे अगर खाना रखा है तो कढ़ाई गर्म होगी तो उसके ऊपर का खाना भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड द एयर प्रेशर ऑन द लैंड डिक्रीजेस। समझ रहे हो, जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, एयर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये अपोजिट में चलता है एयर प्रेशर और टेम्परेचर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। The seawater gets heated slowly, hence the air is less heated and the air pressure remains what, high। But seawater क्या होगा, हीट स्लोली होगा वहां पे, इस वजह से वहां पे एयर क्या होगा, लेस हीटेड रहेगा। डेफिनेटली कोई चीज जल्दी गर्म नहीं होगी तो वहां की एयर भी क्या होगी, लेस हीटेड रहेगी, और लेस हीटेड रहेगी मतलब कम गर्मी है, कम गर्मी है तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। So wind blowing from the sea towards the land are called sea breezes, simple as that। विंड जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसका मतलब सी टुवर्ड्स द लैंड जा रही है, सी पे हाई प्रेशर, लैंड पे लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रीजेस। वैसे सी ब्रीज नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो सी से आ रही है, ऑन द डायरेक्शन, सो फोकस ऑन द डायरेक्शन। सी ब्रीजेस कब बोलेंगे, जब फ्रॉम द सी टू द लैंड। ओके, जब फ्रॉम द सी टू द लैंड। At night, land cools down faster as compared to the sea। रात में क्या होती है, मैंने बोला ना ठंडी लगती है एकदम रात को, तो क्या होती है, at night land cools down faster as compared to the sea and therefore has what, higher air pressure। cools down faster मतलब क्या, ठंडी है तो क्या है, प्रेशर कम है। ठीक है, hence the land breeze blows from the land towards the sea। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। चलो, तो वो जो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी होगा वो क्या होगा, फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी वो डेफिनेटली क्या होगा, लैंड ब्रीज। ये डायग्राम अच्छे से याद रखना। एट नाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है। सो लैंड ब्रीज मतलब फ्रॉम द लैंड टू द सी, फिर यही वापस सुबह पे आ जाएगी। तो ऐसा सर्कल पूरा क्या होता है, चलते रहता है। ओके, चलो चलो, डिफरेंट डिफरेंट लोकल विंड्स के मैंने बोला था नाम हम लोग पढ़ने वाले आगे, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। ये कंट्री के हैं, इट्स नॉट आउट जस्ट इंडिया के, इंडिया में सब मिलेगी, इंडिया में जनरली आपको लू मिलती है। सिमोम इंडिया में नहीं है, ये सहारा और अरेबियन डिजर्ट्स में मिलती है, अभी सब मैं आपको ज्योग्राफी मैप में दिखाऊंगा, डोंट वरी। शिनू, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आगे मैं समझाऊंगा। देन मिस्ट्रल, दे ब्लो इन स्पेन, फ्रांस एंड अराउंड एरिया इन द मेडिटेरियन सी। देन बुरा, ब्लो फ्रॉम द एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन कहाँ है मैं आपको बताता हूँ अभी। देन पेम्पेरो, दे आर पेम्पस ग्रासलैंड इन द साउथ अमेरिका, पेम्पस ग्रासलैंड। ठीक है, देन देयर इज फोएन, फोएन इसको फोएन बोलते हैं। ठीक है, अलोंग द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द एल्प्स, एल्प्स 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 बहुत है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलो फिलहाल चलते हैं मैप की तरफ। चलो, अब ये जो मैंने आपको बताया कि डेजर्ट होती है, लू जो होती है वो लू, तो ये लू जो आ रही है वो थार डेजर्ट की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली, दिस इज इंडिया,
दिस इज राजस्थान। तो राजस्थान में ये जो दिख रहा है ये एरिया, दिस इज होल डेजर्ट। जैसलमेर, बीकानेर नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है, होल डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होगी, विंड आपका, ये जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, ये पूरा डेजर्ट है। तो यहाँ पे गर्म हवा, गर्म हवा को क्या हम लोग फिर उसके बाद ये देख रहे हैं, ये और ये पूरा कंडीशन डेजर्ट ही है, ये पूरा कंडीशन डेजर्ट ही है। तो ये सहारा और अरेबिया डेजर्ट भी है। तो वहाँ पे हम लोग ने नाम पढ़ा था कि सहारा और अरेबिया डेजर्ट से कौन से निकल। ठीक है, फिर मैं एक बार सब बता देता हूँ पहले आपको, देन वापस वहाँ चलेंगे। तो ये रॉकी माउंटेन्स है। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा नेट का इशू। Iconic mountain range from central New Mexico to the Canada and extending 3,000 miles through 6 states. Canada, US वगैरह में सब में है। Remember this, okay? ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस ये माउंटेन रेंज के आसपास है। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे दिखेगा। आई होप यू कैन सी। ये जो दिख रहा है आपको, these are what माउंटेन रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट में आपको ऐसे दिख रहा है कि ज्यादा हाइट था नहीं, माउंटेन कैसे हो गया, बट दिस आर एक्चुअली बिग इन द रियल लाइफ। अगर इंटरनेट है तो इसमें दिखेगा। सी इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, कितना बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस होल इज व्हाट, द माउंटेन रेंजेस और द रॉकी माउंटेन्स। Sahara desert I showed you, this is the Sahara desert, this is the Arabian desert I already showed you। फिर ये जो ग्रासलैंड्स हम लोग ने पढ़ा था, तो ग्रासलैंड्स ये यहाँ पे होती है, ब्यूनस एयर्स जो है ना, ये पूरा जैसे सेंटर पे दिस होल एरिया में यहाँ पे क्या होती है, ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स पे भी अलग हवा चलती है। देन देयर इज एल्प्स माउंटेन, से एल्प्स यूरोप में है। ये स्पेन, फ्रांस वो पढ़ा था ना आप लोगों ने, ठीक है। ये स्पेन में लिखा था, स्पेन, दिस इज फ्रांस एंड दिस इज इटली। ये तीन का नाम है वहाँ पे। और ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये बिट ऑफ येलोइश, ये ऐसे टाइप का। दिस इज नथिंग बट द माउंटेन रेंज। आई विल शो यू हाउ दिस। ये दिख रहा है स्नो, स्नो थोड़ा वाइट वाइट। तो ये माउंटेन पे स्नो है, दिख रहा है। होप यू कैन सी, स्विट्जरलैंड के पास। माउंटेन एल्प्स माउंटेन, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर कि कौन सी विंड कहाँ ब्लो होती है। मैंने आपको अच्छा प्रॉपर दिखा दिया। ब्लू नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मैंने आपको दिखा दिया, राजस्थान में थार डेजर्ट, राजस्थान में सिमन जो है, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वो पूरा जो व्हाइट व्हाइट कलर का था वहां से। देन शिनूक नॉर्थ अमेरिका, इसको स्नो ईटर इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हवा से हमारी जितनी भी स्नो है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है वैलीज में। ये स्पेन फ्रांस में होती है, मेडिटेरेनियन सी में होती है, दिखाया मैंने आपको एल्प्स में, ओरिजिनेट फ्रॉम द एल्प्स। और उसके बाद टुवर्ड्स इटली के बोरा है। फिर दे ब्लो अराउंड द पैम्पस ग्रासलैंड। फिर उसके बाद दिस ब्लो अराउंड द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स। एल्प्स हमने अच्छे से देख लिया। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सीजनल विंड्स, क्योंकि ये इंडिया को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। एक सीजनल विंड्स की पहले तो डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। एक तो है साउथ वेस्ट सीजनल विंड्स, जो साउथ से आ रही है और वेस्ट से आ रही है, इंडिया के साउथ से आ रही है और वेस्ट में एंटर कर रही है। ओके, एंड देन देयर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। इंडिया नॉर्थ ईस्ट कहाँ से आ रही है, इंडिया के नॉर्थ से आ रही है, बट ईस्ट साइड से आ रही है। सो फोकस ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा जब मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट, मतलब ऐसी विंड जो साउथ से आ रही है बट वेस्ट की तरफ से। दैट्स फाइन। व्हेन आई से नॉर्थ ईस्ट, so it is very very clear, it is blowing from the north eastern part of the country। so इस वजह से क्या होती है, मानसून होती है। मानसून मतलब बारिश, बारिश मतलब प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। थोड़ा जियोग्राफी तक जाओ। पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, उसका कंडेंसेशन होगा, इवेपोरेशन से वो पानी क्लाउड्स बनेगा, क्लाउड से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन देयर इज व्हाट, प्रेसिपिटेशन। तो सीजनल विंड्स जो है वो प्रेसिपिटेशन है, मानसून विंड्स भी बोलते हैं इसको।
और साउथ वेस्ट मीन्स भी बोलता हूँ, और नॉर्थ वेस्ट रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, रिट्रीटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वापस आ रही है, यही विंड जाके हिमालयास को टकरा के वापस ब्लो होती है नॉर्थ ईस्ट, retreating monsoon winds. Okay, so monsoon winds are generally due to uneven heating of land and water in the different seasons. देखो अनइवन हीट है, डेफिनेटली पानी में हीट कम होगी क्योंकि ये हीट ज्यादा होगी पानी में, और लैंड में हीट कम होगी, क्विकली वो रिलीज भी कर देता है और ज्यादा भी कर लेता है। सो डिपेंडिंग ऑन द डे एंड नाइट, जो मैंने सेंटेंसेस बोला वो दैट कैन वेरी। सो ड्यूरिंग समर्स मानसून ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। समर में क्या होगा, फ्रॉम द सी टू द लैंड, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, फ्रॉम द सी टू द लैंड, एंड इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर हमेशा ध्यान। ठीक है, Southeast Asia, East Africa, North Australia are the regions where the pronounced effect of these winds are felt. These winds मतलब कौन सी, seasonal, seasonal wind मतलब कौन सी, साउथ वेस्ट winds। मैं साउथ वेस्ट विंड की बात कर रहा हूँ। दिसंबर में क्या होगा और विंटर में क्या होगा। ड्यूरिंग समर मानसून ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, ओके, बट ड्यूरिंग विंटर व्हाट दे डू, फ्रॉम द लैंड टू द सी। और कहाँ कहाँ होता है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन्स। तो देखो ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये और ये पूरा ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। okay, the diagram focus करो। The influence of monsoon wind is seen in the summer and winter season in Indian sub, Indian subcontinent मतलब this whole region is Indian subcontinent, जो इंडिया का पूरा रीजन है वो इंडियन सब। Due to these winds, the Indian subcontinent experiences what, monsoon, that is rainy and retreating monsoon season apart from summer and winter। देखो क्या होता है, बारिश के सीजन के वक्त तो ये साउथ वेस्ट विंड्स आती है, बट ये जब जाती जाती है और वापस फिर लौट के आती है, दिस नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून विंड्स, ये वाली, तो तब तक विंटर हो जाता है। व्हेन इट गोस फ्रॉम ईयर टू देन इट कम्स बैक अगेन, तब तक वो क्या हो जाता है, विंटर। तो कभी कभी विंटर में भी बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, आपने डेफिनेटली सुना होगा। हमारे वेस्टर्न में तो क्या होती है, जब साउथ वेस्ट मानसून आती है तो जून जुलाई में स्टार्ट हो जाती है अच्छे से बारिश, बट वहाँ क्या होती है, वहाँ अक्टूबर नवंबर में भी अच्छी अच्छी बारिश आती है, जब हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती। So this due to two winds, south, west, north, east. These are seasonal winds. Please remember, planetary winds three types: easterlies, westerlies, what, and polar wind. Seasonal winds two types के, northwest, northeast, और what, southwest, southwest, northeast. Sure. Local winds दो टाइप के पड़े थे, माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज। माउंटेन ब्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वैली ब्रीज का डायग्राम था, यू हैव टू प्रिपेयर माउंटेन ब्रीज का डायग्राम एंड वैली ब्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, तक इजी है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकल बीट्स हम लोग ने देख लिए थे, लो, शिनोक, शिनोक, मिस्ट्रा, बोरा, पंपियरो और फोम। ये जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था प्रॉपर, इसको मैप में भी हम लोग ने देख लिया एक्जैक्टली कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये फ्लो होता है। ये यहाँ पे मैप ऑलरेडी दिया है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग ऑन द मैप अगेन। ये जो है रेड कलर का, ये सॉरी दिस इज पिंकिश कलर, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज सम ऑरेंजिश कलर, दिस इज मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट, 25 to 35 डिग्री वाला वो सीन होता है। दिस इज अगेन इक्वेटर एंड दिस इज, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री है, दिस इज द साउथ एशियन कंट्रीज, दिस इज अफ्रीका, दिस इज द अरेबियन डेजर्ट दैट आई शोड यू, दिस इज द एशिया अगेन, दिस इज द इंडिया। Then what happens, मानसून winds are in fact the sea and land breeze blowing on a large scale। ठीक है, मानसून ब्रीज भी एक तरह का क्या है, सी और लैंड ब्रीज ही है, बट वो लार्ज स्केल पे जब ब्लो होती है, फुल 3-4 महीना जब ब्लो होती है, दोज आर नोन एज वो मानसून winds। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, मानसून winds। मैंने डेफिनेटली बोला प्रेसिपिटेशन कब होगा, मानसून winds की वजह से होगा। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब साउथ वेस्ट से आ रहे टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कब आते हैं, बट ड्यूरिंग जून टू सितंबर दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर। तभी तो डेफिनेटली तभी तो बारिश होगी, मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी। From September to December, because of the low pressure area developing near the equator, winds blow from the Indian subcontinent। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट से वापस आ रही है कब, सितंबर टू दिसंबर, towards the equator, these are called north east monsoon winds, they are dry winds। देखो जब जाती है तो फुल ऑफ मॉइस्चर है, बट जब वापस आती है तो पूरा बारिश निकाल के आ जाती है, और वो सिर्फ क्या बन जाती है, ड्राई winds। ओके, सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना डायग्राम इसका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट ये जा रही है, ये फुल ऑफ मॉइस्चर है, इक्वेटर से जून टू सितंबर के महीने में यहाँ पे जाती है, बट जब वहां से वापस जब रिट्रीट करती है, रिट्रीट मतलब रिटर्न आती है तब वो ड्राई हो जाती है, और वो आती है सितंबर टू नवंबर के, सितंबर टू दिसंबर के। ओके, ये दो चीज आपने बहुत सुना होगा, एक तो होती है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन। वेरी वेरी इजी, पीपल इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। साइक्लोन को अगर मैं हिंदी में एकदम सिंपल शब्दों में बोलूं, इसका मतलब होता है तूफान। साइक्लोन का मतलब होता है क्या, तूफान। तूफान मतलब स्टॉर्म,
तो साइक्लोन एक साइक्लोन स्टॉर्म लेकर आता है। साइक्लोन एक ऐसा कंडीशन है जो एक स्टॉर्म लेकर आएगा, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ साइक्लोन स्टॉर्म। अब ये क्या कंडीशन है? इट्स नथिंग बट द गेम ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द विंड्स। ओके, टेम्परेचर क्या है उस वक्त पे, आपका प्रेशर मतलब बेसिकली जो वाटर बॉडी है उसमें प्रेशर क्या है, ये डेफिनेटली साइक्लोन वाटर बॉडी में ही आएगा, तूफान वाटर बॉडी से ही आएगा। हवा वाला तूफान है वो अलग चीज है, वो डेजर्ट में आता है, तूफान की बात नहीं हो रही, बट साइक्लोन जो होगा वो हमेशा वाटर बॉडीज में ही आता है। तो साइक्लोनिक कंडीशंस क्या एकदम ध्यान से आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय अ हाई प्रेशर एरिया। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि लो प्रेशर एरिया उसके सराउंड में हाई प्रेशर, यहाँ पे आप देखते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के साथ, ये देखो ऐसा ऐसा, ये डायग्राम कैसे जा रहा है, ऐसा 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 ऐसा। तो बेसिकली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, मैं बोल सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है। व्हेन आई से क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक ऐसे चलती टू टू टू, ऐसा क्लॉक, बट एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलूंगा तो टू टू, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली ये जो ऐसा 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 जा रहा है, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। सो पूरा ऐसा 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 गोल गोल। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो जब ऐसा ऐसा हो रहा होता है, जो बीच में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है विच इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर एरिया, इसी को मैं बोलता हूँ साइक्लोन। ये करता क्या है, तो ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके सराउंड में हाई प्रेशर एरिया, ये एक वेलोसिटी जनरेट करता है, ठीक है, जिससे विंड क्या होती है, स्लो होना स्टार्ट कर देती है एकदम हाई स्पीड पे। हाई स्पीड जब मैं बोलता हूँ तो इट्स अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स भी हो सकता है, 200 नॉट्स पर आवर भी हो सकता है, इतनी स्पीड में वो, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो 200 की स्पीड से अगर कोई भी हवा आपकी तरफ आएगी तो सोचो वो कितना डैमेज करेगी, इसलिए मैं उसका नाम दे देता हूँ तूफान या फिर स्टॉर्म। इन दिस कंडीशन, ऐसे कंडीशन मतलब जब कौन से कंडीशन में, जब लो प्रेशर अंदर है हाई प्रेशर बाहर है, उसको मैं साइक्लोन बोलता हूँ, तो वैसे कंडीशन में विंड्स ब्लो हो जाती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर, or due to the rotation of the earth the cyclonic winds in the northern hemisphere move in an anti-clockwise direction। अब ये northern hemisphere में इंडिया, इस वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज में होता है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज में, whereas they move clockwise in the southern hemisphere। इसका मैं डेफिनेटली आपको एक साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दूंगा, जस्ट 3-4 मिनट्स मुझे सुन लीजिए, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत मस्त है वो, उसमें सब कुछ समझ आएगा। साइक्लोन के वक्त होता क्या है, साइक्लोन के वक्त होता है कि स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, विंड्स बहुत ही हाई वेलोसिटी से होती है, स्पीड, और बहुत गजब की बारिश होती है। अभी ये रिसेंटली आपने नाम सुना होगा अम्फन साइक्लोन जो एक आया था, दूसरा एक निसर्ग साइक्लोन जो मुंबई में आया, मुंबई में आने वाला था बट आया नहीं अल्टीमेटली, और एक अम्फन साइक्लोन जो उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल या फिर जो बांग्लादेश में आया वो अम्फन साइक्लोन। अम्फन साइक्लोन बहुत डेंजरस हुआ, काफी डैमेज हुआ, अराउंड 98 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 100 पीपल अप्रॉक्स यू कैन से, और काफी डिस्ट्रक्शन हुआ प्रॉपर्टी का। तो इतना डैमेज कर सकता है ये साइक्लोन, इट्स वेरी वेरी डिजास्ट्रस फिनोमेना आप बोल सकते हो नेचर का है, ठीक है। तो ये होता क्यों है ये हम सिर्फ समझ सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। we can take steps to mitigate the effect, we can take steps to reduce the effect, but nobody can stop the cyclonic storm। earthquake हुआ, cyclone, these are natural disasters, natural disasters को हम लोग रोक नहीं सकते, बस हम लोग चीज समझ सकते हैं। तो ये क्या है, लो प्रेशर एरिया एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, उस वक्त होता क्या है, स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स है, विंड बहुत स्पीड से चल रहा है और बहुत ज्यादा बारिश। However, एक अच्छी बात ये है कि एरिया जो अफेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है, बट ऑफ कोर्स साइक्लोन इतना ही बड़ा हुआ है, अल्टीमेटली एक पूरा सिटी पे इफेक्ट कर सकता है। कोलकाता ऐसा बड़ा सिटी, उस पर पूरा इफेक्ट कर सकता है, पूरा कंट्री डेफिनेटली नहीं होगा। ड्यूरेशन, वेलोसिटीज एंड डायरेक्शन एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, साइक्लोन फॉर्म होने के एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर यू कैन से कि भाई अभी साइक्लोन आ सकता है, उससे पहले अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि साइक्लोन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 5.8 साइक्लोनिक स्टॉर्म है, आपको देखो। फिर एक आता है एंटी साइक्लोन। अब ये देखो वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर साइक्लोन में पहले देखो, एंटी साइक्लोन वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर देखना है, एयर प्रेशर को मैं बैरोमीटर से मापता हूँ, तो ये 994 लो प्रेशर, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, तो हाई प्रेशर बाहर है, अंदर अंदर क्या होता जा रहा है, लो प्रेशर, और वो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ में घूमता है, कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, फिर भी चीज रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ही घूम रही है, चाहे वो हवा हो पानी हो कुछ। अब एंटी साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन डेफिनेटली इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि एंटी नाम आ गया। ओके, under specific atmospheric conditions the air pressure in a particular region increases, the pressure in the surrounding areas remain low। एयर प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया और सराउंडिंग एरियाज का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, लो। तो ऐसे सिचुएशन है
विंड कहाँ से ब्लो करेगी? फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरियाज इन सर्कुलर मैनर। विंड बाहर निकलना कोशिश करेगी, वहां पे तो क्या हो रहा है, विंड अंदर आ रही थी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रही थी। सी एज पर्पस। अब इस केस में क्या हो रहा था, अब ये जो केस है, इस केस में क्या हो रहा था, लो प्रेशर बीच में था, हाई प्रेशर बाहर था, तो विंड ये हाई प्रेशर से अंदर आ रही थी लो प्रेशर की तरफ। बट एंटी साइक्लोन में ऐसा नहीं, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर है, पूरा हाई प्रेशर है, और वो जो हाई प्रेशर है वो टुवर्ड्स लो प्रेशर, लो एरियाज की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, मींस ब्लो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरियाज इन अ सर्कुलर मैनर। अब ये देखो एंटी साइक्लोन में क्या होगा, तो वो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये साउथ में क्लॉकवाइज घूम रहा था वो वाला साइक्लोन, तो ये क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, टोटली अपोजिट है। आपको मैं एग्जैक्ट एक डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ। टाइम नाउ सी मैचिंग। It's very important difference between cyclone and cyclones क्या होता है, साइक्लोन लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया एट द सेंटर। एंड यहाँ पे अपवर्ड हो रही है क्रिएटिंग कन्वर्जेंस, इसको ऐसा कन्वर्जेंस बोलते हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्जेंस, ये सीधा ऐसा डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब ऐसा बाहर निकल रही है, डाइवर्जेंस मतलब नीचे आ रहा है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट ये सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अकम्पनीड बाय हमेशा क्या होगा, क्लाउडी वेदर होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत हाई विंड्स होगी, स्पीड बहुत जबरदस्त होगी, वेलोसिटी, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे क्लियर स्काई, कोई क्लाउड नहीं होगा, वहाँ पे वेदर ठीक ठाक होगा, और हल्की सी ब्रीज आएगी। तो बेसिकली एंटी साइक्लोन इतना डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, बट साइक्लोन जो है वो डिस्ट्रक्ट करता है। समझ गए? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी कैन मूव। वेरी इजी चैप्टर, समझते नहीं। ओके, अब आगे। तो इसमें आप देखो ये हाई प्रेशर है, बट बाहर क्या है, लो प्रेशर है। तो देखो हाई प्रेशर मतलब अंदर 1110, बट ये कम हो गया 1008 6 एंड 4, ऐसा प्रॉपर 4। चलो अभी आपको ये सब एक्सरसाइजेस करना। टाइप्स ऑफ विंड, खाली ये फ्लो चार्ट बना देता हूँ। टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड्स तीन टाइप, ईस्टर्लिस, वेस्टर्लिस, पोलर विंड्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या था, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स में ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स था, तो एक और क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। आई होप आप रिमेम्बर कर रहे हो, साउथ वेस्ट मतलब ये ऐसा, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये ऐसा। ठीक है, लुक एट द पोजीशन ऑफ माय हैंड, ये नॉर्थ से आ रही है बट ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ये साउथ से आ रहा है बट ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द पोजीशन, साउथ वेस्ट विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। फिर यहाँ पे आती है लोकल विंड्स। ठीक है, तीन टाइप की विंड्स मैंने बताया, प्लैनेटरी, सीजनल एंड लोकल। तो लोकल विंड्स में अगेन चार टाइप, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये दो तो हमने पढ़ लिया, दो होमवर्क थे, माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज। चलो, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बनाना। प्लैनेटरी विंड्स जो पूरे प्लैनेट पे होती है। ओके, तो ईस्टर्लीज फ्रॉम द ईस्ट, वेस्टर्लीज फ्रॉम द वेस्ट, एंड पोलर विंड्स जो पोलर से आ रहा है। साउथ वेस्ट जो आएगी, साउथ वेस्ट से इक्वेटर से साउथ वेस्ट में जाएगी, हिमालय को टच करके वापस रिट्रीट करेगी, फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये कब होगा, जून टू सितंबर के महीने में। ये कब होगा, फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर में, मतलब ये ठंडी में होगा और ये वाली बारिश में होगा। इस वजह से हमको प्रेसिपिटेशन होता है, अदरवाइज बारिश नहीं आती। ये लैंड ब्रिज, लैंड और सी का आपको कंसेप्ट मालूम है, एक जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। लैंड वाटर जल्दी गर्म भी नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। इस वजह से प्रेशर में डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में आएगा डिफरेंस आता है। और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी, दिन के वक्त अलग और रात के वक्त डेफिनेटली वो अलग होगा। तो पूरे दिन ऐसा वो सर्कल चलते रहता है, फ्रॉम लैंड टू सी, सी टू लैंड, फ्रॉम लैंड टू सी, सी टू लैंड, ऐसा होता है। तो माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज वेरी इजी है। माउंटेन के बीच में, अगर दो माउंटेन के बीच में जगह है तो ऐसा बी शेप में वैली हो जाएगा, और ये जो टॉप है तो वो माउंटेन, ये भी है माउंटेन। तो ऊपर की जो माउंटेन ब्रिज हमेशा क्या होगी, थोड़ी ठंडी होगी, और वैली के बीच हमेशा मोस्टली क्या होगी, गर्म होगी। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर पूरा खत्म करना है। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आपको इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन में क्या होगा, बीच में लो प्रेशर, साइड में हाई प्रेशर, सेंटर में यहाँ पे लो प्रेशर और साइड में हाई प्रेशर, तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। एंटी साइक्लोन में क्या होगा, बीच में हाई प्रेशर, साइड में लो प्रेशर, तो ये नंबर घटता चला जाएगा। तो ये आपको डायग्राम है एक बनाना है, ये मिली बार्स में इसको डेफिनेटली मैंने क्या किया है, मेजर किया हुआ है। तो इसका एक होमवर्क भी है आपको ये वाला, यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, ये अगर बढ़ रहा है तो क्या है, बीच में लो प्रेशर, साइड में हाई प्रेशर, तो ऊपर वाला साइक्लोन है। नीचे वाला क्या है, बीच में हाई प्रेशर, साइड में क्या है, लो प्रेशर, तो ये वाला क्या होगा, एंटी साइक्लोन। ये आपको बनाना है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन।
ये किसी के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में, मम्मी के मोबाइल में आप ये वाला ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पे आपको पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ द विंड्स और प्रेशर एरिया जो अर्थ पे है। ओके, फिर ये सब रीजंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो जब एयर एक्सपेंड होगी इट विल डेफिनेटली बिकम व्हाट, थिनर। दिस आर द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व एट योर होम। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद द और write down your comments below on the video. Chalo, see you guys, stay safe.